Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, one question is asked time and again by the candidate, sir, what is the ratio in which IBPS will call candidate for main examination? For that, we have to read the notification carefully. In notification itself, IBPS has made very clear that adequate number of candidates in each category as decided by IBPS depending upon requirements will be shortlisted for online main exam. It gives flexibility to the IBPS board. That means even if reported vacancies are lower at this stage and subsequently some vacancies are added, they can call more number of candidates, or in anticipation of vacancies also they can call more number of candidates for main examination. So some people, those are having apprehension that sir, if vacancies are added later on it will not help us, is not based on facts. Read the notification carefully. IBPS guidelines are different than SBI. Because SBI only one bank participates, so they give clear-cut number of times how many they will call. This is a board. More number of banks are participating. Some banks report the vacancy early, others report later on. And that's why IBPS has kept the right with himself or itself that they can call more candidates for main examination if they anticipate addition of vacancies in future, or there are pipeline vacancies. Pipeline vacancies means if they have some idea that still 4 major banks are yet to report, they will definitely put a cushion of those vacancies based on their past trends or past history. So our role is we should not bother about these petty things. We should bother about whatever is ahead of us. Ahead is that already some banks have reported the vacancies. That is, 4 banks have reported the vacancies. 3 banks have reported nil vacancies. 4 major banks are yet to report the vacancies. So our effort should be that somehow these banks report vacancies at earliest so that we get lower cutoff and we get a chance to sit in main examination. And that's why today I put one video in that I requested you to request Finance Minister, she can prevail upon the management of these banks to finalize vacancies at earliest, because all banks fall under the jurisdiction of Ministry of Finance. So if the minister is aware of problem of youth and she intervenes, vacancies can be very easily added. Because I was senior officer in bank, I can say how quickly these things can happen if some dictate comes from higher up. And for bank, finance ministry is higher up. So if finance ministry knows that there is some let up at the lower level, they are not reporting the vacancies, which is their job, they can very well say, why you are not reporting the vacancies? What is the hitch? Why don't you expedite the finalization of vacancies? All these things can happen. Some people says it will not happen. No, I don't believe that. If we make sincere efforts, if we make concerted efforts, and if matter is brought to the knowledge of senior people, sometimes things move. We should not lose hope. We have to remain hopeful all the time. Because if you will become hopeless or you will feel that nothing can be done, that means you have already lost the battle. In life, we have to win the battle against odds. Odds are there, that is very clear. Such a low vacancy you must not have seen or even dreamt. And if you want that these vacancies to go up, you have to put in effort.
Side by side you have to prepare, side by side you have to request the concerned authorities that please expedite. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आज काफ़ी लोग ये बात पूछ रहे हैं कि सर कितने टाइम्स ये बुलाएंगे मेन के लिए। इसके लिए आप नोटिफिकेशन में जाइए, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि IBPS एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट मीन्स ये निश्चित नहीं है 10 गुना 20 गुना 30 गुना, ये कुछ भी हो सकता है अनुपात। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मेन परीक्षा के लिए बुलाएगा डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। इसका क्या अर्थ है? जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि प्रीम में जो रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं उसके 10 गुना बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। वो स्टेट बैंक के लिए है। स्टेट बैंक में एक बैंक पार्टिसिपेट करता है, यहाँ नंबर ऑफ बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बोर्ड है, किसी बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट कर दी है, किसी ने अभी रिपोर्ट नहीं की है। तो जिन बैंकों ने अभी रिपोर्ट नहीं की है उनकी तो IBPS वेट करेगा ना वैकेंसी रिपोर्टिंग की, या कुछ एंटिसिपेट करेगा ये कितनी रिपोर्ट कर देंगे, कुछ इनफॉर्मल डेटा लेगा उनसे या पास्ट ट्रेंड लेगा। अब आप देखें इसके अंदर क्या एनालिसिस करिए आप। 11 बैंक है, 4 बैंकों ने वैकेंसी बता दी अपनी, ठीक है, 3 ने नील दे दी, 4 ने अभी रिपोर्ट नहीं की है। दैट मीन्स ये 4 में वैकेंसी, और ये चारों मेजर बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, चारों मेजर बैंक है। इनमें से बल्क ऑफ वैकेंसी आ सकती है। तो हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए कि हमें उन अथॉरिटीज के पास जाना चाहिए जो इन बैंकों की मैनेजमेंट को कहे कि आप वैकेंसी जल्दी से जल्दी फाइनल करें और रिपोर्ट करें IBPS को। और इसीलिए आज की वीडियो में मैंने आपसे कहा कि यदि आप फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी नॉलेज में लाते हैं कि मैडम ये हमारे कैरियर का सवाल है, इन बैंकों ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है, इनको आप कहिए कि जल्दी वैकेंसी आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करें। कुछ लोग कहते कुछ नहीं होगा, ऐसे मत जाइए, निराशा में मत जाइए, सब कुछ संभव होता है। ऑड्स होते हैं, ऑड्स को लड़ना भी पड़ता है, ऑड्स के लिए रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है, सही जगह पर पहुंचना भी पड़ता है। मैं अपने बैंक में सीनियर पोजीशंस पर रहा हूँ और मुझे पता है कि किस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जरा सा भी इंटरफेयर करती है अगर किसी चीज़ के अंदर, या कुछ काम करने को कहती है, बैंकों को करना पड़ता है। तो ये मामला जहाँ यूथ के कैरियर का सवाल है वहाँ पर वो नहीं कहेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कई बार क्या होता है वहाँ तक बात ही नहीं पहुँची होती, उनको पता ही नहीं होता, वो तो समझ रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। पर अगर मिनिस्ट्री में कोई बात जाती है, उनको पता लगता है कि फला फला बैंक ने वैकेंसी दे दी है, फला बैंक ने वैकेंसी नहीं दी है, तो वो जरूर पूछेंगे कि भाई क्या बात है, क्यों लेट कर रहे हो, क्यों नहीं टाइम से वैकेंसी देते हो, क्यों नहीं बच्चों को वैकेंसी मिल जाती है जिसके लिए वो अपना कैरियर बना सकें। तो मेहनत हम करें, हम तो देखो एफर्ट कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, क्योंकि एक आदमी कहेगा उससे तो नहीं होगा ना, और सब लोग मिलके कहेंगे, सब बताएंगे। क्योंकि ये मानना कि नहीं वो व्यक्ति हेल्प नहीं करेगा, ये मैं नहीं मानता। मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा है कि जब हम किसी लेवल पे गए हैं, हमने अपनी बात रखी है, तो उनको पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है, और जैसे ही उनकी नॉलेज में आया उन्होंने इंटरफेयर किया और काम बन गया। तो एफर्ट करने में कुछ नहीं जाता, निराश होने से कुछ नहीं बनेगा। जो सर्कमस्टांसेस हैं सामने हैं, इन्हीं में हमें लड़ना है, इन्हीं में हमें आगे बढ़ना है, इन्हीं में हमें मेहनत करनी है। जो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे या निराश होकर बैठ जाएंगे, किसी और का नुकसान नहीं होना है, हमारा अपना ही होना है। और अगर हम थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे और थोड़ा सा एफर्ट भी करेंगे कि जिन बैंकों ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है वो रिपोर्ट कर दें, तो हमारा काम बन सकता है। ये मत चाहिए कि रिपोर्टेड वैकेंसी का सिर्फ 10 गुना ही प्रीम में पास होंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, अपने आप लोग विचार बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल ओपन, उनके पास पावर है, जितने मर्जी गुना वो लोग बुलाए मेन के लिए। अपनी मेहनत करिए, आपको वीडियोस हम डाल रहे हैं कैसे पढ़ाई करनी है, उस पर कंसंट्रेट करिए।
और ईश्वर पे भरोसा करिए, अपने काम पे भरोसा करिए, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।